right? So we'll discuss about thermal velocity first. Yes, we'll discuss about thermal velocity. Now what do you mean by thermal velocity? You have this, we have studied in previous classes also that all the electrons are in a state of random motion, continuous random motion, and they always keep on colliding with each other. So now we are going to discuss how is this collision happening, thermal velocity क्या है, drift velocity क्या है. Drift velocity पे हम बाद में आएंगे. First we will discuss about the thermal velocity. So before starting thermal velocity, let us say this is an atom, ये nucleus, and some electrons are here, some electrons are in the next shell, and some other electrons are here, like there are many shells. So ये एक electron है, and this is the nucleus. I am denoting the nucleus here. All these electrons are revolving in different shells of a atom. Now suppose there are certain metals which when brought in the room temperature gain some energy. सारे metals के electrons का energy level different होता है, but कुछ metals में, कुछ conductors में क्या होता है, whenever you are bringing them to the room temperature they are gaining some energy. अभी suppose वो energy इस atom को मिली, right? Now this electron has gained that energy. So this electron will receive that energy and it goes out. It leaves the atom and it comes out and it becomes the free electron, right? It becomes the free electron. Now for current conduction के लिए हमें क्या चाहिए? चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ से आते हैं वो चार्जेस? एटम में से आते हैं. एटम में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करता है वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ जाता है, एंड नाउ इट इज टर्म्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन. वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया. अभी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा कहाँ? It is having extra energy, it is happy. Now where it will go? It will go to an ion which needs it, right? It will go to a body which is positively charged, right? So say suppose there is an ion here, positively charged ion, and the moment this negatively charged electron became free from this atom, this ion will quickly take it. So how this happens? So I am taking this as an atom. Wait, it's visible I think here. Yes. So I am taking this as an atom. ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये अलग अलग शेल्स हैं, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एंड yes, there are few electrons inside here and there. So this is a negatively charged electron which is free. It is carrying a lot of energy, right? Now this atom has lost the electron and it is say positively charged. Now it is a positively charged ion. Because it is a positively charged ion, this electron, ये जो यहाँ से free electron आ रहा है, हमने बोला यहाँ पे एक free electron है, and it is the same free electron, it is carrying some energy and it will hit this positively charged ion. It has already lost its electron. तो ये क्या है? एक positively charged ion है, ये एक positively charged ion है, because it is positively charged. So ये जो electron which is carrying energy, this electron will directly hit this. किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, हमने कहा इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, जैसे ही ये हिट करेगा, यू स्टडीड इन collision chapter in 11th standard, say a particle of mass m1 coming and hitting a particle of mass m2. in case m1 m2 सेम है, ये कोलाइड करेगा. कोलाइड करते ही क्या होगा? अगर m1 m2 दोनों सेम है, देन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज. अभी हमने कहा कि ये 100 यूनिट्स एनर्जी 100 की स्पीड से आ रहा था, और ये जो रिवॉल्व कर रहा था इस आयन के अंदर, इसके पास 40 स्पीड था. सो द मोमेंट इट इज कमिंग विद अ स्पीड ऑफ 100, दिस हैविंग अ स्पीड ऑफ 40 विल एक्सचेंज द स्पीड. एक्सचेंज करने से क्या होगा? इसका स्पीड जो यहां पे आके कोलाइड हुआ, इसका स्पीड कितना हो जाएगा? इसका स्पीड हो जाएगा 100, और जो नो दिस वाज 100 ना, दिस वाज 40. इट वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40. द मोमेंट इट कम्स हियर, जिसका स्पीड 40 था, अभी इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 100, और इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 40. मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गया, इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग विद द स्पीड ऑफ 40. अभी जो इलेक्ट्रॉन जिसने ये एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी किया, वो कहां जाएगा? इट विल अगेन बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन. आर यू गेटिंग? किसी भी
इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी कैरी कर रहा है, इट विल हिट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और इन एन आयन बिकॉज इट वॉज पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए अट्रैक्ट हुआ, राइट. इट विल रिसीव एनर्जी, सम इलेक्ट्रॉन, अभी ये आया और इसने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, और जिस इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी लिया इट विल कम मूव आउट ऑफ द एटम. दैट इज व्हाट हैपेंस एंड वी से, हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम स्टेट ऑफ मोशन, दे आर ऑलवेज कोलाइडिंग विद ईच अदर. कोलिजन में हो क्या रहा है, एवरी इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग एनर्जी, कोलाइडिंग, बिकम्स फ्री एंड देन मूव्स. नाउ दिस गिव्स राइज टू द थर्मल वेलोसिटी. हर एक इलेक्ट्रॉन अपना 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 they take energy, they exchange energy and they move. Now the question is, when the energy is of very high order, 10 raised to power 5 meter per second or say 100 kilometer per second, इतना high velocity ये thermal velocity होता है. Now the question is, when this velocity is so much high, then why do not electrons leave the, सारे electrons को इतना high energy 100 kilometer per second, इट्स वेरी हाई, 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड, इतना एनर्जी जाके इलेक्ट्रॉन चले क्यों नहीं जाते, एटम से बाहर क्यों नहीं निकल जाते दीज एटम्स. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर, वी ऑलवेज से दे आर कोलाइडिंग कोलाइडिंग एंड दे आर इन रैंडम स्टेट ऑफ मोशन. से ये कोई एटम है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन. अभी से सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रॉन एंड इट गेन सम एनर्जी एंड कम्स हियर, ये E माइनस. सो ये जो सरफेस है इसका क्या चार्ज हो जाएगा, E प्लस. द मोमेंट इलेक्ट्रॉन इज लीविंग द सरफेस, सी इतना ज्यादा वेलोसिटी है, इतना ज्यादा एनर्जी है, इट मे लीव द एटम, लीव भी करता है बट इट इज डिफिकल्ट, नॉट दैट इजी, लीव भी करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, दैट विल डिस्कस लेटर. बट सपोज इसने एनर्जी लिया, वेलोसिटी लिया और ये इमीडिएटली मेटल सरफेस को छोड़ के यहां पे आ गया, राइट. जैसे ही ये यहां पे आया, ये जो एटम था इसका चार्ज कितना होगा, E प्लस +1, एक इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ -1. अभी दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस डिस्टेंस द मोमेंट इट लीव्स द डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल एंड द फोर्स बिटवीन देम इज 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. ये डिस्टेंस इतना कम है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लार्ज एंड व्हाट एटम विल डू, द मोमेंट इट लीव्स एटम विल ब्रिंग इट बैक बिकॉज ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई since the distance is very very less, right. So what happens to this thermal velocity, अभी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर, does the current conduction is due to the thermal velocity? No, there is one more velocity which is responsible for the current conduction. इतना high velocity होने के बाद भी thermal velocity adds up to 0. अभी हमने बोला इसका U1, U2, U3, U4, UN, सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना अपना थर्मल वेलोसिटी है. स्टिल द थर्मल वेलोसिटी एंड एवरीवन इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, दैट इज क्वाइट हाई नंबर. स्टिल U1 plus U2 plus U3 up to UN, if we find their average, it comes out to be 0. Why it comes out to be 0? Say at a given instant, say 2000 electrons are moving in this direction and colliding, then at the same time 2000 electrons are moving in opposite direction with different velocity, because collision में, because सबका mass same है, collision में velocity exchange होती रहती है and the number is very very high. किसी भी metal की अगर हम बात करें तो number is as high as 10 raised to power 28 electrons पर मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब में दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, से थाउजेंड्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, थाउजेंड्स विल बी मूविंग एट दैट इंस्टेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी अगर हम सबकी ऐड कर दें तो वो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ऑल्दो अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद दैट मच हाई स्पीड, राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल वेलोसिटी. नाउ वी आर coming on the topic of drift velocity. Understand the word drift. Right now, say this is a conductor and we have applied a electric field to the conductor. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इस डायरेक्शन में, that is the direction, it means this side is plus and this side is minus, right. Now when we are applying electric field, और पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं अप्लाई की थी, इनिशियली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0, सो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऑल इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग इन सम रैंडम डायरेक्शन, सबका अपना अपना डायरेक्शन था, दे वर इन कंटिन्यूअस रैंडम collision with each other and they were moving in different random directions.
the moment you apply the electric field, every electron will experience a drift. हर एक इलेक्ट्रॉन को एक ड्रिफ्ट मिलेगा. ड्रिफ्ट मीन्स दे विल गेट अ स्मॉल जर्क. से सपोज देर इज अ बोट मूविंग इन वाटर एंड वाटर फ्लो इज राइट. सो जब आप मूव कर रहे हो बोट को, रो कर रहे हो बोट को, बिकॉज वाटर फ्लो क्या है, राइट में, तो आपकी बोट धीरे 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 राइट साइड ड्रिफ्ट होती चली जाती है, खिसकती चली जाती है, राइट. दिस स्लाइट जर्क इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट. सो क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था, लिसन वेरी केयरफुली चिल्ड्रन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था, क्योंकि पॉजिटिव साइड इधर है, तो इसको थोड़ा सा ड्रिफ्ट मिलेगा और ये ऐसे मूव करने लगेगा, हल्का सा खिसक गया इधर, ड्रिफ्ट. अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऐसे मूव कर रहा था, इट विल स्लाइटली ड्रिफ्ट दिस साइड. ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऐसे मूव कर रहा था, ये हल्का सा इधर ड्रिफ्ट हो जाएगा. एंड दिस ड्रिफ्ट स्पीड is very very less. It is of the order of 1 millimeter per second. 1 millimeter. क्या फर्क पड़ता है 1 millimeter से? Say you are standing, किसी ने तुम्हें इधर से पुश किया एंड तुम हिल गए, कितना? 1 millimeter. Does it makes effect? No, it hardly makes effect. सारे इलेक्ट्रॉन जो ऐसे मूव कर रहे थे वो ऐसे ड्रिफ्ट हो गया, जो ऐसे जा रहा था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे चलने लगा. नाउ दिस इज हियर, दिस विल ड्रिफ्ट. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा 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 ड्रिफ्ट मिलेगा, किसकी तरफ? पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी की तरफ. ये ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है, दिस इज वेरी वेरी लेस, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. क्या फर्क पड़ने वाला है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से? बट नाउ से समवन इज पुशिंग यू बाय 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, हार्डली मैटर्स. बट व्हेन अर्थ गेट अ अर्थक्वेक, राइट, अर्थ इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर, only 5 centimeter. Such a huge damage and such a huge disaster all around, right? Does it matter? Yes, it matters, because earth has so many molecules, earth has so many systems, so that 5 centimeter bhi move hui hai, so that matters a lot. It creates earthquake. Similarly, ये जो थोड़ा 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 हर एक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, इज नॉट गोइंग टू मैटर. बट जब 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स को ये ड्रिफ्ट मिलेगा, then we say that the current conduction starts. Speed becomes so high. 1 millimeter per second is 10⁻³ 10⁻³ into 10⁻28. Speed you can imagine. So I say the current conduction is due to the drift velocity and not the thermal velocity. Now we are going to derive the expression for drift velocity.